Hello students, in this video we discuss the concept of F-test or variance ratio test. Basically इस टेस्ट को ग्रेट स्टैटिस्टियन आर ए फिशर ने डिज़ाइन किया था. So that's why this test represent the F-test, and the objective of this F-test is to find whether the two independent estimate of populations variance differ significantly, or whether the two samples may be regarded as drawn from the normal population having the same variance. ये हमें फाइंड करना है कि हम अगर नॉर्मल पॉपुलेशन से कुछ सैंपल ड्रॉ करते हैं, if we draw the samples from the normal populations, then this sample having the same variance. So this is our focus to design the F test. For carrying out this F test test of significance, we calculate the ratio F is defined as, so F is equal to S1 square divided by S2 square. So where we can define the S1 square, which is equal to summation of x1 minus x1 1 ka whole square. So this is the mean of x1 bar, x1 divided by n1 minus 1. Same as here, S2 square is equal to summation of x2 minus x2 bar का whole square divided by n2 minus 1, where this S1 square and S2 square both are the standard deviations. Okay, so it should be noted that the value of S1 square is always larger than the value of S2 square. So that is, we can say that the S1 square which is greater than S2 square. ये हमें कंसिडर करना होगा कि जो S1 स्क्वायर की वैल्यू होगी वो क्या होगी, S2 स्क्वायर से ज़्यादा होगी. तो डेट मीन्स जब हम इस दोनों स्टैंडर्ड डिविएशंस को हम जब चेक करेंगे, इनकी वैल्यू कंपेयर करेंगे, अकॉर्डिंगली हम ये फार्मूला डिज़ाइन करेंगे. सो F इज इक्वल टू लार्जर एस्टिमेट ऑफ वेरिएंस डिवाइडेड बाय स्मॉलर एस्टिमेट ऑफ वेरिएंस. सो दिस इज अ फार्मूला. तो जो भी वैल्यू हमारी ज़्यादा आएगी इन दोनों में से, उस वैल्यू को हम पहले यहाँ रखेंगे और नीचे हम स्मॉलेस्ट वैल्यू को यहाँ रखेंगे, यानी कि बड़ी वैल्यू से छोटी वैल्यू को हम डिवाइड करेंगे. देखेंगे एग्जाम्पल में करके कैसे करना है. एंड वी हैव डिफाइंड द टू बेसिकली डिग्री ऑफ फ्रीडम विच इज V1 and V2. V1 arises from the sample first, V2 arises from the sample second, which is equal to n1 minus 1, n2 minus 1, where V1 is equal to degree of freedom for sample having the larger variance, and V2 is equal to degree of freedom for sample having the smaller variance. So this is the degree of freedom. जितना हमारे पास डेटा सैंपल गिवन होगा उसमें से हम 1 का सब्ट्रैक्शन करेंगे तो वो हमारा क्या निकलेगा, डिग्री ऑफ फ्रीडम फाइंड होगा V1 एंड V2. ओके, सो यहाँ ये दे रखा है कि डिग्री ऑफ फ्रीडम फॉर सैंपल हैविंग लार्जर वेरिएंस, एंड V2 क्या होगा, डिग्री ऑफ फ्रीडम फॉर सैंपल हैविंग द स्मॉलर वेरिएंस. इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है. अकॉर्डिंगली लार्जर एस्टिमेट ऑफ वेरिएंस की वैल्यू ऊपर से डिवाइड होगी, ऊपर रखी जाएगी, और स्मॉलर एस्टिमेट ऑफ वेरिएंस की वैल्यू नीचे रखी जाएगी. दैट विल बी कॉल्ड द F रेशियो टेस्ट, या यू कैन से अ वेरिएंस रेशियो टेस्ट. ओके, कंडीशन चेक कर लेते हैं. जो हमारे पास कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ F आ जाएगा उसको कंपेयर किया जाएगा टेबुलर वैल्यू ऑफ F एट 5% और 1% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस पर. वी विल टेस्ट. So if calculated value of F is greater than tabulated value, then F is considered significant and null hypothesis is rejected. कहने का मतलब मेरा यह है कि अगर F calculated is greater than F tabulated, if F calculated is greater than F tabulated, so the F ratio is considered significant and null hypothesis हमारा क्या होगा, रिजेक्ट होगा. H0 rejected. Okay, if calculated value of F is less than tabulated value, then null hypothesis is accepted and
both the sample have come from the same population having the same variance. Exactly, हम ये फाइंड कर पाएंगे अगर हमारी f कैलकुलेटेड वैल्यू जो हम कैलकुलेट करेंगे अगर वो क्या है लेस देन है किससे f टेबुलेटेड वैल्यू से, देन वी कैन से हमारा जो नल हाइपोथेसिस वो होगा वो क्या होगा एक्सेप्टेड होगा. एंड इन दैट केस वी कैन से दैट द सैंपल्स come from the population having the same variance. Okay, f test is basically is defined as ratio of two variance, so it is also known as variance ratio test. इसे variance ratio test भी बोलते हैं. Okay, so f test is also known as variance ratio test. There are some assumptions, few assumptions in the f test. So first assumption is normality, second is homogeneity, and third is the independence of error. First of all, consider the normality. The concept of normality, that means the value in each groups are normally distributed. Homogeneity, the variance within each group should be equal for all groups. That means this is a homogeneity, like sigma 1 square is equal to sigma 2 square is equal to sigma c square, for example. Okay, all the variance within the each group should be equal. And third, independence of errors. It states that the error should be independent for each value. जो भी अगर error हमारी अकड़ होती है वो हमारी हर value के लिए independent हो. So these are the some normal assumptions. Let us take some example. एक example लेके देखते हैं, clear हो जाएगा उससे भी. Two random sample were drawn from two normal populations and their values like A and B. ये वाले कुछ वैल्यूज दे रखी है, ठीक है. रैंडम सैंपल हमने ड्रॉ करा नॉर्मल पॉपुलेशन से और इनकी वैल्यू हमारे सामने गिवन है, ये आप देख सकते हैं वैल्यूज. फाइन, यहाँ पे n का साइज कितना है, n1 सपोज हमारा है 9, यहाँ पे n2 कितना है सपोज 11. ओके, सो हमें ये फाइंड करना है कि वेदर द टू पॉपुलेशन हैविंग द सेम वेरिएंस एट 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस. सो f की वैल्यू जो हमारी टेबुलेटेड वैल्यू है वो गिवन है, विच इज f इज इक्वल टू 3.36 एट 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, वे v1 इज इक्वल टू 10, v2 इज इक्वल टू 8. v1 इज इक्वल टू 10 कैसे आया, इट्स अ डिग्री ऑफ फ्रीडम्स हैविंग द लार्ज वेरिएंस, यानी कि ये लार्ज वेरिएंस है, लार्ज वैल्यू ये लेकर चल रहा है. तो दिस इज 11 माइनस 1 10. स्मॉल है, 9 सैम्पल साइज है, 9 सैम्पल साइज है. सो 9 में से 1 गया, इट्स 8, ठीक है. तो हमारी डिग्री ऑफ फ्रीडम गिवन है 10 एंड 8. 10 और 8 अगर हम देखेंगे तो हमारी जो वैल्यू होगी f 3.36 होगी. ये हम दिखा सकते हैं आपको स्टैटिस्टिकल टेबलेटेड वैल्यूज़ में. बहुत ध्यान से देखिएगा, ये हमारे पास 5% पॉइंट ऑफ फिशर्स एफ डिस्ट्रीब्यूशन की टेबल है, ये आपको दिख रहा होगा. इसमें हमने देखा कि जो v1 और v2 है, दिस इज अ v1, दिस इज v2. तो v1 is 10 and v2 is 8. So this is 10 and accordingly we will go for the 8. Okay, near about 30717. So 3 point something वैल्यू हमारी यहाँ पर विजिबल हो रही है. ओके, या एक तरीका यह है देखने का. दूसरा तरीका हमारे पास क्या है कि v1 हमारा 10 है, v2 8 है, ठीक है. सो v1 इज 10, यहाँ हम चेक करते हैं, v1 इज 10, v2 इज 8. सो वी आर सीइंग दैट 3 इज एग्जैक्ट वे 3.3472, यानी कि दिस इज कंसिडर एज v1 and this consider as v2. Okay, so this is v2, this is v1. So we will have the 3.3472 is the values from the f distribution at 5% level of significance. Similarly ऐसी ही टेबल आपको मिलेगी 1% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस की भी, वो भी आप देख सकते हैं, ठीक है. समटाइम्स एग्जाम से वैल्यूज गिवन भी हो जाती हैं, जैसे कि इस क्वेश्चन में वैल्यूज हमारी गिवन है, हमारे पास इस क्वेश्चन में वैल्यू गिवन, जो वैल्यू गिवन होगी वो वैल्यू हमारी क्या होगी, टेबलेटेड वैल्यू होगी. एनीवे, सो वी नो दैट द फॉर्मूलास ऑफ फिशर डिस्ट्रीब्यूशन विच इज f इज इक्वल टू s1 स्क्वायर डिवाइडेड बाय s2 स्क्वायर. अकॉर्डिंगली हम जानते हैं कि फॉर्मूला क्या होता है s1 स्क्वायर का. s1 स्क्वायर हमने निकाला था
समेशन ऑफ यू कैन से x1 माइनस x1 बार का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय n1 माइनस 1, ये वाला फॉर्मूला होता है S1 स्क्वायर का। तो हम अकॉर्डिंगली टेबल बनाएंगे, a की वैल्यू हम यहाँ साइन करी, ठीक है। समेशन x1 निकाला हमने यहाँ से, सेम एज हमने x1 माइनस x1 बार निकाल लिया है यहाँ से। आप निकाल लेंगे कैलकुलेशन करके इसका। समेशन x1 हमारा 0 आ गया लेटेस्ट से, इसे हमने स्मॉल x1 से डिनोट कर सकते हैं। स्क्वायर निकालेंगे इन सब का, स्क्वायर निकालने के बाद हमारे पास इसका स्क्वायर वैल्यू आ जाएगा। सेम एज x2 की हमने वैल्यू निकाली, x2 हमारे पास गिवन है, डेटा गिवन है, ठीक है। ये डेटा हमारे पास गिवन है, इसका समेशन निकाल लिया नीचे। एंड आफ्टर डेट x2 माइनस x2 बार का x2 बार ये हमने कैलकुलेट किया, ऑब्वियसली 0 आएगा, ठीक है। जरूरी नहीं है कि 0 आए, आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है। और स्मॉल x2 का होल स्क्वायर निकाला तो हमारे पास ये वैल्यूज आ गई। तो डेट मीन्स इन शॉर्ट हम देखें हमारे पास समेशन x1, समेशन स्मॉल x1, समेशन x1 स्क्वायर, समेशन x2 इक्वल टू 0, समेशन x2 का स्क्वायर, ये हमारे पास सारी वैल्यूज गिवन हो गई। नेक्स्ट स्टेप पे आते हैं। x बार 1 क्या है, मीन है, ठीक है, हमने यहाँ से मीन निकाल लिया। x2 बार का हमने यहाँ से मीन निकाल लिया, x2 बार हमने निकाल लिया। फॉर्मूला अप्लाई करा S1 स्क्वायर एंड S2 स्क्वायर का, डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करा, वैल्यूज हमारे पास पिछली टेबल्स आ चुकी हैं। सो वी विल हैव दिस वैल्यूज। अब हमें ये देखना है कि इन दोनों में से वैल्यू किसकी ज़्यादा है। हमने देखा S2 स्क्वायर की वैल्यू ज़्यादा है S1 स्क्वायर से, तो हम F स्टैटिस्टिक्स के अंदर S1 स्क्वायर डिवाइड बाय S2 स्क्वायर रखेंगे नेचुरली, बट इसका मतलब ये नहीं कि हम इस वैल्यू को यहाँ रख देंगे या ऐसे यहाँ रख देंगे। हमने अभी ये देखा था, जो F डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला है वो है लार्जर एस्टिमेट ऑफ वेरिएंस डिवाइड बाय स्मॉलर एस्टिमेट ऑफ वेरिएंस। सो हियर 129.8 is a larger estimate of variance comparatively to the S1 square. Okay, so we will put this value 129.8 here divided by 91.75 here. We can solve. So this is our F calculated. ये हमारे पास क्या आ गई, F calculated. So we can compare the F calculated. F tabulated हमारे पास क्या है, F tabulated हमारे पास 3.36 अराउंड है। ओके, 3.36 अराउंड है। तो वी आर सीइंग दैट द F calculated is less than F tabulated. That means our hypothesis H0 is accepted. So we can say that the calculation of two populations having the same variance, जो हमें ये फाइंड करना था, क्योंकि हमारी जो वैल्यू आई है फाइनली ये क्या है, F calculated is less than F tabulated. So our hypothesis is accepted. So we can say that the two populations having the same variance. I hope ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा. So thank you for watching this video.